Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about treasury, asset, and liability management. Okay. I hope you guys are doing well with your exam preparation. So, now very few days are remaining. And today, we are going to talk about the last unit from your module C. Okay. तो अगर आप लोग भी मेरे स्पीड में चल रहे होंगे सो लाइक दैट मीन्स वी हैव कवर अराउंड 85 to 90% ऑफ कोर्स कंटेंट फ्रॉम योर BFM सब्जेक्ट ओके treasury management which is all about the module C and where we already covered the like the remaining unit. So today we have treasury and ALM. Okay, let's have a quick look about the course content. Very simple one, and most of things we have covered in the past also. Okay? But we will discuss this particular one in detail, and we will revise and basically refine your concepts also, right? Unit number 25, treasury, asset, and liability management, which is also known as ALM. So, meaning of ALM, asset liability management. Then we have liquidity risk and interest risk, which are the two major components with the ALM part. Then we have role of treasury in ALM. So, if we have interest rate risk or if we have any kind of like funding risk or liquidity risk, so that is generally managed by treasury itself in our banks. So, very important role. Uses of derivatives in ALM by treasury management. So derivative के ऊपर हमने past एक 3 सेशन आपके किए थे. I hope आपने सारे देख लिए होंगे. Very important one, right? Then credit risk and credit derivatives. Then we have transfer pricing, which is like whenever we plan any kind of risk mitigations or hedging things. Okay? So to minimize any kind of risk. So we have to bond some prices, like even the regulatory requirements like CRR and SLR also. Then we have policy environment. Okay, so these are some subtopics which are generally part of your treasury and ALM. Like whenever we talk about the goal of every bank in any country, so it is to achieve the solvency as well as liquidity. So liquidity and solvency, we generally want to achieve both the cases same simultaneously. So whenever we talk about solvency, it is all about the positive net worth of a bank or institution, and liquidity, that means bank is or institution is able to repay their short term obligations. Okay, so this is the kind of very important role, and we can say a very important aspect of every organization's team. So for that one we use a treasury in our organizations. ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग आपका treasury का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है. So the risk arise out of mismatch of asset and liabilities. The bank and asset liability management is managing such balance sheet risks. They are generally part of balance sheet risk. Okay, the risk if not controlled may result in negative aspect or in erosion of net worth. Okay, that means that will definitely going to make an adverse impact on your overall net worth. ALM is therefore define the protection of net worth of the bank. Okay, so ALM is basically asset liability management. अगर हम if there is not a proper management, ठीक है, so what we are going to face, that is कहीं ना कहीं आपका like organization, they may face liquidity risk or they may face your other type of risk like interest rate risk and others. How it generally impact our bank balance sheet. Let's say like the core business of banking is borrowing for the purpose of lending. ठीक है, तो ये हम लोग usually आपका करते हैं. ठीक है, we generally accept deposit. In case of Indian scenario, we generally accept deposit from the customer at a फिक्स रेट. राइट, लेट्स से हमने आपका 10 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया एट द रेट ऑफ 7% पर एनम. ठीक है, सो सपोज दैट दिस डिपॉजिट इज फॉर 5 years. फ्रॉम दिस टेकन डिपॉजिट वी जनरली क्रिएट एसेट. ठीक है, सपोज दैट हमने इसे एसेट क्रिएट किया आपका 10 करोड़ रुपीस का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. And
इट इज फॉर सपोज दैट 10 years, ठीक है, 10 साल का हमने आपका एक एसेट क्रिएट किया, ठीक है. सो नाउ वी हैव अ गैप इन दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो योर like your deposit is payable at the end of fifth month, ठीक है. So we need a proper source of fund, ठीक है. तो अगर हमें एक प्रॉपर सोर्स ऑफ फंडिंग आपका चाहिए होगा एट द एंड ऑफ 5 years, एंड करेंटली जैसे वी हैव गिवन दिस लोन एट 12%. सो करंट एनआईआई, ठीक है, जो हमारा करंट एनआईआई है, ठीक है. सो नेट इंटरेस्ट इनकम इज हाउ मच, it is 500 basis point or 5%, ठीक है. So it is 500 basis point or it is also known as 5%, ठीक है. तो ये 5% का हमारा NII. If something happen with interest rate, ठीक है, आप जैसे अगर इंटरेस्ट रेट के साथ पहला तो at the end of 5 year you need 10 crore rupees with interest आपका, ठीक है, 10 crore plus interest आपका. अगर आपके फंडिंग सोर्सेज में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सो हमने इसके लिए कोई और एसेट प्लान किया था, अगर वो एसेट आपका एनपीओ हो जाता है, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, सर. दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लिक्विडिटी रिस्क. अनदर वन इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, हाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क विल इम्पैक्ट, ठीक है. अब दिस इज द करंट सिचुएशन व्हेन वी designed this particular asset or when we created this particular asset, our NII was 500 basis point. अब इंडियन सिनेरियो में कैसे चलता है, वी एक्सेप्ट डिपॉजिट एट फिक्स रेट एंड वी लैंड एट फ्लोटिंग रेट, ठीक है. सपोज दैट दिस लोन इज होम लोन एंड इट इज लिंक विद योर रेपो रेट. अब कल के डेट में सपोज दैट ये आपका रेपो रेट के साथ लिंक था, ठीक है. अब अगर कल के डेट में रेपो रेट नीचे आता है या जिस भी इंडाइसेस के साथ वो लिंक है, अगर वो नीचे आता है, ठीक है, सपोज दैट at the time when we give this particular loan, repo rate was suppose that 6.25%, ठीक है, a hypothetical situation, ठीक है. After some time due to some crisis or anything else, ठीक है, it came down to 4%. तो अब आपका जो like there is a reduction of how much 2.25%. So that means it your NII, there will be a negative impact on your NII by 2.25% और 225 basis point, ठीक है, 225 basis points. ओके, जस्ट आपका हाफ के अराउंड आपका आ जाएगा जो अर्निंग्स. So these are generally these kind of risk, and this thing is generally get managed by the ALM, ठीक है. तो ALM कहीं ना कहीं इसको आपका क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, ठीक है. नाउ दैट मीन्स आर बैंक टू अचीव द सॉल्वेंसी, हमें हायर रेट पे करना होता है. तो यहाँ से एक तो सॉल्वेंसी को प्रोटेक्ट करना, अपनी नेटवर्क को पॉजिटिव में रखना. दूसरे तरफ हमें आपका कहीं ना कहीं आपका जो लिक्विडिटी है, जो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे ऑब्लिगेशंस आपके हैं उनको टाइमली बेसिस पे मीट करना, दैट इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कुछ इस तरीके से जो ये आपका काम करेगा, ठीक है. सो एज वी हैव सीन अर्लियर, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, ठीक है. As the liquidity risk translate into interest rate risk, when the bank has recycled the deposit funds or roll over a credit on market determined terms. However, banks are extra sensitive to liquidity risk as they cannot afford default or delay meeting their obligation to depositors and other lenders, ठीक है. तो अगर हम लोग सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी में से हमें आपका ऑप्ट करना होगा, सो विल फर्स्ट वन इज कि वी वांट बोथ, बट अगर मतलब एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सो विल गो विद लिक्विडिटी बिकॉज लाइक जैसे सिंपल सा लॉजिक है, इफ वी आर नॉट मेकिंग दिस पर्टिकुलर पेमेंट, जैसे किसी ने आपके साथ 5 साल का डिपॉजिट किया एंड एट द एंड ऑफ 5 years वी आर नॉट रिटर्निंग देयर मनी, सो देयर विल बी अ like kind of a disaster for the bank, ठीक है. अगर डिपॉजिटर्स आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर मनी, ठीक है, तो अगर उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा, सो दे विल क्रिएट, जैसे आपका एक रेपुटेशन रिस्क आपका हो जाएगा, या आपका जैसे और ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस जो आपका बैंक जो नए डिपॉजिट्स होंगे उनके ऊपर सीधा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा इन ऑल, और स्पेशली व्हेन वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपका जो काफी इंपॉर्टेंट मतलब काफी मतलब चैलेंजिंग आपकी हैं बैंक के लिए, एंड बैंक कैन नॉट इग्नोर दीज वन, राइट. So even suspicion of pressure over a bank liquidity may prompt a run on the bank, or indeed threaten the very survival of the bank. Hence, a special attention is to be paid to liquidity, in particular short-term liquidity, intraday to 1 month, to ensure funds are promptly made available when they are needed, ठीक है.
तो ये समझ में आ गया होगा हो। तो इसी के लिए जैसे हमने आपका क्या बनाए थे, LCR पढ़ा था, ठीक है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और आपका NSFR, ठीक है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ठीक है, इट इज फॉर 30 डेज आपका, और इट इज फॉर अप टू 1 ईयर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही रेशियो जो हम लोग 100% से ऊपर मेंटेन करते हैं, उसका रीजन यही है कि अगर कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आता है तो वहां पे भी हम किसी भी प्रकार के ट्रैप में आपका ना फंसे, ठीक है। इवन वी हैव RBI गाइडलाइंस ऑल्सो, ठीक है। तो लिक्विडिटी के ऊपर हमने बहुत सारी गाइडलाइंस आपका पास्ट में पढ़ी हुई हैं, आई होप एवरीबडी रिमेंबर दिस वन, ठीक है। सो RBI हैज प्रिस्क्राइब टाइम बैंड, जैसे आपका नेक्स्ट डे, 24 आवर्स, 2 days to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 30 days, etc. for measuring and monitoring liquidity gap. ALM process involve plotting of assets and liabilities maturity wise in time bucket, and measuring the gap between asset and liabilities maturing in specific time period. Liquidity risk is reflected as maturity mismatch, which is gap in cash inflow and outflow, right? इसका simple सा meaning, जैसे suppose that your payable are scheduled on a 5th, तो योर आपके जो एसेट्स है, जो रिसीवेबल्स हैं, वो कौन से डेट पे है, ठीक है। इफ इट इज ऑन फर्स्ट, दैट मींस देयर इज नो गैप, ठीक है, वो आपका सही है, ठीक है। दूसरी तरफ इफ योर रिसीवेबल्स आर शेड्यूल ऑन 10th, आप 5 दिन का गैप है, सो दैट गैप जो यहाँ पे जिसकी बात करें, ठीक है, एंड हाउ यू विल मैनेज दैट पर्टिकुलर गैप, so there should be a proper plan B, right? The risk is not being able to find enough cash or cash acceptable rate of interest to fund that particular gap, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि like there are some situation जहाँ पे आपके पास like you do not have any sources जहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। RBI from time to time issue detailed guidelines for managing ALM risk. RBI is more particular about short-term liquidity, ranging from intraday to 1 month. Current guidelines stipulate that net cumulative negative mismatch during the next day, 2 to 7 days, 8 to 14 days, and 15 to 20 days, 28 days bucket should not exceed 5% for intraday, मतलब आपका next day, 10% आपका for 2 to 7 days, 15% for 8 to 14 days, and 15 to 28%, it is 20% of the cumulative cash outflows in the respect time bucket. Bank are required to provide in their liquidity management policy contingency measure to meet any shortfall in liquidity. The contingency measure may include standby credit lines from other institutions also, right? तो बेसिकली वी आर मीटिंग दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स कि जो भी आपका ऐसा कोई भी शॉर्टफॉल है, सो व्हाट इज आर प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है, या आपका जो प्रॉपर रिपोर्टिंग्स जो वहां पे आपका रहेगा, ठीक है। सो जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन। ओके, so now if we talk about this same, so interest rate risk, I hope अब second part is interest rate risk. Interest rate risk is, अब जैसे मैंने आपको example दिया, ठीक है, so what is NII? I hope now everybody understand what is NII. It is आपका inflow minus outflow, inflow on your assets, outflow on your liabilities, ठीक है। So it should be in positive, then only you will receive the achieve the positive net worth. But आपका जो किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट आता है, जैसे एम्बेडेड ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, अदर्स जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज व्हेन इंटरेस्ट अर्निंग आर नॉट एडिक्वेट टू सेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ड्यू टू इन गिवन पीरियड, even if a book value of the asset equal that of the liability owing to a change in market rate of interest. NII of the bank is the difference between interest earning and interest payments in a given accounting period. Hence, interest rate risk may be defined as a risk of erosion of NII account of interest rate movements in the market itself, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आई होप यू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। तो जैसे हमने डिपॉजिट आपका एक्सेप्ट किए थे 6% पे, ठीक है, फिक्स रेट पे आपका, एंड हमने लैंडिंग करी थी आपका 12% फिक्स रेट पे, ठीक है, 7% एक्चुअली, चलो मान लेते हैं यही। सो दिस इज आपका एज पर दिस सिनेरियो वी हैव पॉजिटिव NII, ठीक है, हमारा NII पॉजिटिव है कितने का, 6% का, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन इंडियन बिजनेस वी एक्सेप्ट डिपॉजिट एट फिक्स रेट, एंड
वी लैंड एट फ्लोटिंग रेट। अब ये दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से आपके चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका कल के डेट में सपोज दैट आफ्टर सम टाइम ये आपका एफडी का डिपॉजिट था, ठीक है, एंड नाउ रेट ऑन एफडी इन मार्केट इंक्रीज टू सपोज दैट 10%, एफडी के रेट आपका बढ़ के 10% हो गए। सो दिस व्हाट दिस इन्वेस्टर विल डू, वो आपका इसको प्रीमेच्योर करेगा और इसमें आपका शिफ्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, एंड यू कैन नॉट डिनाई, ठीक है। तो एक चीज तो आपका ये हो गया। अब अगर आपका ये लोन है सपोज दैट फिक्स रेट पे, ठीक है, अगर ये फिक्स रेट पे लोन है, ठीक है, जैसे पर्सनल लोन, इससे आपने पर्सनल लोन दिया था, तो भी आपका एनआईआई के ऊपर इससे अज्यूमिंग कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, सो योर एनआईआई देयर विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट। अब एनआईआई कितना रह जाएगा, ओनली 2%। तो जो पहले 6% था, आपकी अर्निंग 6% हो रही थी, अब वो आपका कितना हुआ, 2%। दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं, सपोज दैट आपका ये जो आपका फिक्स पे, ये फ्लोटिंग पे है, ठीक है, एंड देयर इज डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस एंड इट केम डाउन टू सपोज दैट 9%, ठीक है, जो भी जिस भी इंडाइसेस के साथ था, जैसे हमने रेपो रेट का भी एग्जांपल लिया था, ठीक है। So now 6 plus 9, so there is only 3% NII, ठीक है। So now your NII will decline from 6% to 3%. So in both the cases आप इसको मतलब ये फंडिंग साइड से भी हो सकता है या आपका एसेट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक केस दिया गया था, इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेट अस अज्यूम दैट बैंक हैज मोबिलाइज्ड डिपॉजिट 100 crore rupees with average maturity of 6 months, ठीक है, and at a 5% interest rate, average interest is 5%, ठीक है। जो बोरोविंग आपकी है उस पे 100 करोड़ पे और 6 मंथ का डिपॉजिट है। लेट अस अज्यूम दैट बैंक इन्वेस्टेड द अमाउंट इन अ फिक्स इंटरेस्ट लोन पेबल्स, फिक्स इंटरेस्ट लोन पेबल आफ्टर 5 years, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप है आपका, 6 मंथ का था और 5 years का, ठीक है। तो गैप इज एंड इंटरेस्ट इज 7%, तो एनआईआई कितना है आपका 2%, ठीक है। सो एनआईआई इज 2%, दैट मीन्स यू विल अर्न 2 crore rupees फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी के लिए हम लोग देखें, बट at the end of 6 months you will be requiring 100 crore rupees, so you need a stable sources of funding, first thing, yeah. So the deposit mature after 6 months and need to be replaced or recycled at a current market rate से 6%। अब यहाँ पे 6% पे हमने जो पहले पहले 5% पे था, अब उस समय करंट मार्केट रिस्क कितना हो गया, 6% हो गया, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली योर एनआईआई विल कम डाउन टू 1% फ्रॉम 2%, ठीक है। दूसरा, इफ अज्यूम दैट डिपॉजिट बिकम कॉस्टलियर देन आफ्टर 6 मंथ्स डिमांडिंग अ रिन्यूअल ऑफ 8%, ठीक है। अब आपने लैंड कितने पे किया था, आपका एवरेज कितने पे किया था हमने, 7% पे, और अब ये आपका हो गया 8%। तो योर एनआईआई विल बिकम नेगेटिव ऑफ 1% और 1 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। तो दिस वे, ठीक है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो आरबीआई, एक बार थोड़ा सा आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। आरबीआई स्टिपुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क which include interest rate mismatch. Capital is also to be provided for any derivative, forward option swap used to bridge such mismatch. RBI is recommending simplified approach under Basel III for determining the capital requirement for derivative instruments for banks, which handle a range of sophisticated derivative product like options with zero cost structure, etc. Intermediate approach like delta plus method and scenario approach have been recommended for bank which write options and deal in other sophisticated derivative product. So this is the kind of your आपका ऑप्शंस टू डील विद इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका, ठीक है। इसके अलावा जो कोर है आपका, दैट कोर यू हैव टू मेंटेन एज इट इज। कोर मींस आपका जो एनएसएफआर है या अदर्स है वो सारी चीज, ठीक है। So, or even the diversification rule in others. So, experience of ALM in Indian scenario, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जनरली हमारे बैंक, जैसे आप लोग रेगुलर बेसिस पर डील करते हो, यू एक्सेप्ट डिपॉजिट एट अ फिक्स रेट मोस्ट ऑफ केसेस एंड वी लैंड इन अ फ्लोटिंग रेट, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ केसेस। डिपॉजिट हमेशा फिक्स पे ही होते हैं, ठीक है, एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसको हम बोलते हैं। दूसरा, अब ये ऐसा नहीं था, पहले एक बार टेस्ट भी किया था एसबीआई और आईसीआईसी, देयर वाज सम बैंक जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे लिया आपका डिपॉजिट, बट वो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। सो डिपॉजिटर्स आर ऑलवेज कंफर्टेबल विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. Bank like SBI and IDBI in past introduced deposit scheme link to floating rate interest.
but it had not found the flavor of the depositors. Hence, the product were withdrawn by these particular bank. ठीक है, तो एसबीआई ने आईडीबीआई ने आपका ये टेस्ट आपका किया था कि जहां पे फ्लोटिंग रेट पे उन्होंने आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कस्टमर से, बट कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को आपका एक्सेप्ट नहीं किया. सो देयर वाज वेरी लेस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इटसेल्फ. So under this circumtension, in case the deposit rate goes up subsequent to placement of deposit by the depositors, the depositors would come for a premature extension of the deposit and get enhanced interest rate. Bank also do not charge any penalty for such extension. तो अब बात आ गया ना वहीं पे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपका बोरोविंग एवरेज वॉज 6%, ठीक है, एंड लैंडिंग वॉज एट आपका कितने परसेंट पे 12% पे. ठीक है, सो इनिशियली योर एनआईआई वॉज हाउ मच 6%, 600 बेसिस पॉइंट. अब क्या ये डिपॉजिट आपका 10 साल के लिए था, सपोज दैट 10 इयर्स के लिए. व्हाट हैपन आफ्टर 1 ईयर्स या 2 इयर्स, 2 साल के बाद क्या हुआ, मार्केट में डिपॉजिट के रेट इंक्रीज टू 9%. ठीक है, ये बढ़ गए. तो ऑब्वियसली ये भी बोलेगा अभी 8 साल पड़े हुए हैं, वो बोलेगा मेरा प्री मेच्योर करो या तो फिर मेरे को यहां से यहां शिफ्ट करो. ठीक है, तो इस केस में आपका अगर आपने फिक्स रेट पे लैंडिंग है तो योर एनआईआई विल नाउ बिकम टू ओनली 3%. सो योर एनआईआई विल कम डाउन फ्रॉम 6% to 3%. आई होप नाउ यू गाइज आर एबल टू relate those particular examples with this particular concept, right? So, but in the advanced side, RBI has introduced the MCLR system. ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप एक वो आ गया, ठीक है, marginal cost of fund based lending rate from April 1st 2016, which is a floating rate of interest. ठीक है, hence under the interest rate falling scenario, the bank NIM, net interest margin, how we calculate net interest margin, it is NII divided by average asset. ठीक है, would be come down since the depositor are fixed rate and advance rate are floating rate. अब ये इस साइड में कैसे, जैसे suppose that we have given loan to a company X, ठीक है, और customer X, suppose that 10 crore rupees at the rate of 14% per annum. ठीक है, and this was funded through borrowing. हमने किया था 10 crore rupees का at the rate of suppose that 8% पे. ठीक है, आपका so NII was how much 6%, 6% का NII था. अब we have given embedded option to this company X, हमने इसको एक ऑप्शन दे रखा है प्री पेमेंट्स का आपका, कि आप चाहें तो कभी भी अपनी इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको पे कर सकते हैं. ऐसा ऑप्शन देते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन. ठीक है, अब अगर कल के डेट में ये जो आपका लोन का रेट है, सपोज दैट दे केम डाउन टू आपका 9% पर एनम, तो ऑब्वियसली ही विल शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस. वो बोलेगा भैया इतना प्री पेमेंट करो किसी दूसरे बैंक से या खुद के बैंक से, वो आपका इस चीज में शिफ्ट करेगा. सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट, मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर एनआईआई. तो आप कितना एनआईआई बचा आपका, सिर्फ 1% का. ठीक है, जो पहले कितना था 6%. ठीक है, इन केस इंटरेस्ट रेट गोज अप, द बैंक मे नॉट एक्चुअली गेट द फुल बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, as most of depositors would come a premature extension of the deposit. By this interest rate going up and nullified and the risk is passed to the bank itself. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर कभी आपका रेट बढ़ गया, ठीक है, सपोज दैट आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, जैसे हमने 14% पे दिया था, ये बढ़ के 16% हो गया. अगर ये बढ़ेगा तो इसके रेट भी बढ़ेंगे. तो अब ये तो ठीक है, चलो ये हुआ, हमें यहाँ से बेनिफिट होना था 8 और 16, तो ये एनआईआई 8% होना था. बट ये लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ये लोग बोलेंगे नहीं भैया आप ज्यादा पे लैंड करो, हमें भी क्या करो ज्यादा दो. सो दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस तरीके से अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डिपॉजिट और एसेट्स विद आवर बैंक्स, तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट दैट इज जनरली थ्रू द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो रोल ऑफ ट्रेजरी, तो ये आपका ट्रेजरी की जिम्मेदारी है. ठीक है, so as stated earlier, the core function of treasury is fund management. It automatically engulfs liquidity and interest rate risk as the treasury maintain the pool of bank funds. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेजरी एंड एएलएम, अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं तो अभी हम पिछले कुछ दिनों से एएलएम, मतलब एएलएम वाज द लाइक जो टॉप मोस्ट फंक्शंस होते हैं आपके ट्रेजरी के, उसमें एक आपका एएलएम. ठीक है, सो जैसे हमने एएलएम रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तो सब यहीं पे एट एज द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक कैरीज enormous market risk. The banking operation itself is confined to accepting deposits and extending credit to needy borrowers.
Beside miscellaneous payment services, it is a treasury which operate in financial market directly, establishing a link between core banking function and market operation. Hence, the market risk is identified and monitored through the treasury itself. ठीक है, तो इवन जैसे आपका कोई भी आर्बिट्राज ऑप्शन है या कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको हेज करना, तो ये सारी एक्टिविटीज दे आर जनरली हैंडल्ड बाय द बैंक इटसेल्फ. तो अगर आपका कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है या लिक्विडिटी सरप्लस है, तो उस सरप्लस का इस्तेमाल करना, उसको आपको मनी मार्केट में लैंड करना. अगर डेफिसिट है तो मनी मार्केट या किसी अदर मार्केट से फंड अरेंजमेंट करना. सो एएलएम का जो गैप है, दैट गैप इज जनरली फिल्ड बाय द ट्रेजरी इटसेल्फ. ठीक है, ट्रेजरी व्हाइल टेकिंग ट्रेडिंग पोजीशन इन फॉरेक्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट is also exposed to market risk on its own creation. Sometimes the risks are compensatory in nature and help bridge the mismatch on banking side. The treasury may therefore has only residual risk also. ठीक है, और आगे कुछ है. Yes, as the market develop, many credit product are being substituted by the treasury product. For instance, bank may subscribe to commercial purpose instead of extending our working capital to an entity. Treasury are marketable and hence liquidity can be infused in time of need. Treasury also monitor exchange rate and interest rate movements in the market, and hence it is much easier to administer such risk through the treasury operation also, right? Uses of derivative in ALM. तो derivative are generally handled by treasury, and uses of derivative in ALM, ठीक है, तो वो आपका, ठीक है. So derivative instrument are useful in managing the liquidity and interest rate risk, as also in structuring new product will help overcome market risk to a larger extent. Derivative replicate market movements and hence can be used to counter the risk inherent in regular transaction also. या जैसे हमने पढ़ा था ना क्रेडिट डेरिवेटिव्स, या ये जो सारे हैं आपका आज के डेट में काफी ज्यादा यूज होते हैं. So for instance, if we are buying a stock which is highly sensitive to market, we can sell index future of an insurance or hedge against fall in the stock prices. तो ये मतलब हमने पास 3 सेशन इसी पे लगाए हैं. आई होप सबको याद होगा, ठीक है, जहां पे हमने बात किया था यूजेस ऑफ डेरिवेटिव. जैसे सपोज दैट हमने किसी हाईली सेंसिटिव आपका सिक्योरिटी के अंदर वी हैव इन्वेस्टेड 50 करोड़ रुपीस. सो इसके मतलब जो हाईली वॉलेटाइल, इसके अपसाइड की चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं, बट अब हाईली वॉलेटाइल है तो नीचे भी आ सकता है. सो टू प्रोटेक्ट दिस डाउनफॉल, we enter into the future contract of this particular security, or we can sell the indices where it is linked with, ठीक है, जिसके साथ उसका मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट आपका हो रहा है उसके साथ. ठीक है, so the advantages in derivative is that the requirement of capital is very small. Derivative are very highly leveraged funds, ये हमने पढ़ा था, and largely there is no deployment of funds. ठीक है, सो ये भी आपका जैसे हमने समझा था ना कि लाइक लेट्स से इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 करोड़ रुपीस, तो आप ये जो XYZ कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर आपके पास आपके 50 करोड़ के शेयर्स हैं, ठीक है, कैश में, सो यू कैन सेल अप टू 50 करोड़ डेरिवेटिव ऑफ दिस XYZ कंपनी. और इवन इफ यू हैव शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी इन योर बुक्स, उसके बेसिस पे भी आप किसी और कंपनी के इंडेक्सेस को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ठीक है, derivative can be used to hedge high value individual transaction or aggregate risk as reflected the asset liability mismatch. In the later case, a dynamic management of hedge is necessary as the composition of asset and liabilities is always changing. ठीक है, तो hedging is the primary goal of like जैसे आपका जो forward थे हमने पढ़े थे, या even your future or even the swap agreements which we generally use, right? क्रेडिट रिस्क एंड डेरिवेटिव. तो क्रेडिट रिस्क के ऊपर हमने, आई होप यू रिमेंबर दैट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है, टोटल रिटर्न स्वैप एंड अदर्स. ठीक है, सो एज वी हैव सीन, ट्रेजरी इज मोस्टली कंसर्न विद द मार्केट रिस्क. Credit risk in treasury business is only with the respect to counterparty dealings, contained by exposure limit and risk management norms. In normal course, treasury operation are untouched by the credit risk present in a banking lending business, but ऐसा नहीं है. मतलब कुछ जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हैं, दे आर जनरली यूज हियर ओनली. ठीक है, तो जैसे क्रेडिट डेरिवेटिव्स आपका help issuer diversify the credit risk and use
द कैपिटल मोर एफिशिएंटली। मैंने समझाया था ना आपको, लाइक जैसे आपको जल्दी से रिकॉल कराता हूँ, ऐसे सपोज दैट एसबीआई दे हैव गिवन लोन टू कंपनी एक्स, कितना, सपोज दैट 50 करोड़ रुपीज एंड इट इज फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के लिए, ठीक है। सो अब 10 साल का लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कल के डेट में अगर इस XYZ कंपनी की क्रेडिट वीकनेस आपकी होती है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। टू मिटिगेट दैट पर्टिकुलर वन, SBI they entered into a contract with XYZ Financial or some other banks, ठीक है। That contract is known as credit default swap, ठीक है। तो जहां पे XYZ as a protection seller is making some promises कि if this company X get default, we will pay the remaining principal and interest amount. In return, you have to pay us a premium, ठीक है। तो ये आपका, so without transferring the ownership of this particular asset, SBI they have changed the they have transferred the risk in this particular asset, ठीक है। तो अब यूजुअली क्रेडिट रिस्क आपका ट्रेजरी के द्वारा मैनेज नहीं होता, बट हाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं डेरिवेटिव्स के अंदर आपका, खासकर क्रेडिट डेरिवेटिव्स या अदर्स, जो यहाँ पे भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं। अदरवाइज लाइक मोस्ट ऑफ टाइम वी जनरली डील इन विद मार्केट एक्टिविटीज ओनली, राइट। So the credit derivative is a transferable instrument through the market for credit, though the market for credit derivative is not very liquid. Credit derivative products are still emerging in various this okay. Chalo. So the eligible entities under market makers and users categories, तो कौन कौन से होते हैं market makers like banks and others, और users में भी obviously वही सब आपके होते हैं, sometime it is individual participation also. So market makers, commercial bank, standalone primary dealers, non-commercial NBFCs, non-banking finance companies having sound financial and good track record in providing credit facilities, and other institutions specifically permitted by RBI. Insurance companies, mutual funds would be permitted by their regulators. That means insurance is IRDA and आपका mutual funds is by the SEBI itself. ठीक है, तो these are the market makers for the credit derivatives. ये आपका अगर कंफ्यूज मत होइएगा, it is for credit derivative, ठीक है। अब दूसरी साइड आपका, अब देखो डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव इज अ स्वैप, और मोस्ट ऑफ टाइम स्वैप में कौन पार्टिसिपेट करता है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जैसे कमर्शियल बैंक आपका प्राइमरी डीलर्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस, आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एक्सिम, नबार्ड, आपका एनएसबी, सिडबी, इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स and any other institution specifically permitted by RBI. So these are the users of credit derivative. Credit derivative का जो मार्केट है ना, ओवरऑल अगर आप इसको स्टडी करेंगे वर्ल्ड वाइड, इट इज अबाउट $5 बिलियन, ठीक है। एंड अभी ना मतलब इंडिया के अंदर इसका इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, बट बिलीव में गाइस आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप देखना, तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। जहां पे मतलब वन इंस्टीट्यूशन इज डीलिंग इन लैंडिंग पार्ट एंड दे आर बाइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सम अदर। जैसे यहाँ पे एक टर्म होता है ना असाइनमेंट आपका, ठीक है, तो वो उसी की तरह आपका ये भी काम कर रहा होता है, ठीक है। सो क्रेडिट, जैसे हमने बैड बैंक्स आपका बनाया, उसमें क्या किया हमने, तो यही चीज तो किया हमने, जो अब वहां पे सिर्फ क्या हुआ, जो जब एनपीए हो गया तब ट्रांसफर किया। यहाँ पहले से आपका एसेट का मतलब ओनरशिप विल रिमेन विद बैंक इटसेल्फ, ठीक है, बट उसका जो रिस्क है दैट रिस्क विल गेट ट्रांसफर टू सम अदर पार्टी, ठीक है, इस तरीके से। So RBI has prescribed eligibility norms for market makers and also prescribed detailed operational guidelines and capital adequacy norms for credit default swap as well, right? अगला पॉइंट एंड आई गेस द फाइनल पॉइंट फ्रॉम योर ट्रेजरी वर्सेस ALM इज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो प्राइसिंग मैंने आपको समझाया था, आई होप यू गाइस रिमेंबर। सो देयर इज अ 5 पॉइंट प्रोसेस जो हमने पढ़े थे मॉड्यूल बी के अंदर। क्या पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट होता है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज मेजरमेंट, क्वान्टिफाइंग द रिस्क, ठीक है, कितना नुकसान हो सकता है। थर्ड वन वॉज प्राइसिंग। प्राइसिंग इज लाइक व्हेन वी प्लान सम मिटिगेशन थिंग्स, जैसे आरबीआई ने रिजर्व सिस्टम बनाया है, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर आपका बनाया गया, क्यों, क्योंकि जिससे हमारी बैंक्स आपका प्रोटेक्ट हो सके। अब ये बनाने के, अब अगर इफ एनी बैंक हु इज मेंटेनिंग 4.50% ऑफ सीआरआर, अगर वो इतना मेंटेन कर रहा है, तो दैट मींस एंड इवन आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सीआरआर, ठीक है, आरबीआई इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, तो आपने कस्टमर से बोरो किया, आपने आरबीआई को दे दिया फ्री में, ठीक है, तो वो पैसा हम लैंड कर सकते हैं। 4.50% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो वो चीजें, तो वो कहीं ना कहीं बैंक
क्या कर रहा है, उस 4.50% पे अपने पॉकेट से या जो लैंडिंग कर रहा होता है उसमें से निकाल करके कस्टमर को आपका या जिससे भी उसने लाइबिलिटी ले रखी है उसको पे कर रहा होता है. सो दैट इज अ प्राइस, दैट प्राइस इज जनरली बॉन्ड बाय बैंक. या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एसएलआर मेंटेन करना होता है, या अदर आपके जो भी ऐसे प्रोविजन, या सिंपल आपका जैसे इफ वी एंटर इनटू अ हेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो कई बार क्या होता है हेजिंग में, जैसे आपके पास कोई सिक्योरिटी है 100 करोड़ रुपीज की, आपने 100 करोड़ रुपीज मतलब कुछ अनसर्टेनिटी है, आपने 100 करोड़ रुपीज का सेल कर दिया, हेज कर दिया. अब वो आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों पोटेंशियल को रोक देगा. डाउनसाइड को तो रोकना ही था, बट अपसाइड भी आपका रोक सकेगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके. So transfer pricing refer to fixing the cost of resources and return on asset of the bank in a rational manner. ठीक है, तो अब ये जो costing आपका है, it should be in a rational manner. ठीक है. The treasury normally buy and sell the deposit and loan of bank, and the price at which the treasury buy and sell form the basis of assessing profitability of the bank. ठीक है, जैसे 6% पे बाई किया, 8% पे, तो 2% इज योर एनआई. ठीक है. The treasury determine the buy sell price on the basis of market rates of interest, the cost of hedging market risk and cost of maintaining reserve asset. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए you have to decide your pricing. ठीक है, जब ट्रेजरी आपका प्राइसिंग करेगा बाय सेल का, ऐसा नहीं कि आप मतलब आपको जितने परसेंट पे मिला उतने पे बाय करो. नो, यू कैन नॉट, बिकॉज आपको उसको लैंड करना, और लैंड करने के साथ साथ आपको ये चीजों का भी तो ध्यान रखना है. सो दैट इज द वन, राइट. The asset liability management will acha, okay. The another part is policy environment, and this is very important one, and the last one. Okay. So policy environment, okay. So ALM will be effective only if there is a strong policy for foundation. Like it should be at board level, ठीक है, जिसमें एल्को का आपका एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी का रोल होगा. ठीक है. एंड every process or policy will be part of board approval, right? Because it's a very sincere job. ठीक है, आप ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विडिटी और आपका सॉल्वेंसी इसी के ऊपर आपका पूरी टिकी पड़ी है. ठीक है. Though in general we describe the ALM policy, the policy should aim at aggregate risk of the bank and should achieve coordination between different department of the bank and treasury, because now it has become integrated. ठीक है. So एक दूसरे डिपार्टमेंट का इम्पैक्ट जरूर रहेगा, एंड सो विल बी रिक्वायर द प्रॉपर इंटीग्रेशन और coordinations. An integrated risk management policy bearing upon market risk of bank should ideally have the following components. जिसमें पहला आपका ALM policy. So there will be a proper policy. ठीक है, do's don't सब कुछ आपका clearly articulated हो. ठीक है. So ALM policy prescribe the composition of ELCO, Asset Liability Management Committee, and operational aspect of ALM, including risk measure, monitoring of risk neutralizing, product pricing, management information system, and more importantly, how to improve and or maintain the existing NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, जिससे हम लोग कंपनी की लॉन्ग टर्म जो आपका सॉल्वेंसी है उसको बरकरार रख सकें. ठीक है. लिक्विडिटी पॉलिसी के संबंध में, लिक्विडिटी पॉलिसी प्रिस्क्राइब मिनिमम लिक्विडिटी टू बी मेंटेन, फंडिंग ऑफ रिजर्व एसेट आपका जैसे CRR एंड SLR, limit on exposures to a money market, contingent funding, interbank committed credit lines, etc. Right. Next one, derivative policy prescribe norms for use of derivative, capital allocation, restrictions on derivatives, ट्रेडिंग वैल्यूएशन नॉर्म, एक्सपोजर लिमिट्स एंड ऑल. तो कितने वैल्यू तक का हम लोग आपका ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोजर क्या होगा, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, या फिर अदर्स आपका यूजेस क्या होगा उनका. ठीक है, कहाँ पे यूज किए जाएंगे. ठीक है. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रिस्क्राइब द इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स री क्रेडिट रेटिंग और लिस्टिंग, SLR एंड नॉन SLR इन्वेस्टमेंट, private placements, trading in securities and repos, classification and valuations of investments, accounting policies, etc. Right. The final one is composite risk policy for foreign exchange and treasury. Prescribe the norms of merchant and trading positions, securities trading, exposure limits, intraday and overnight positions, stop loss limit, periodical valuation of trading position, etc. Right. तो ये एक simple सा कि like when you are planning your ALM, or when you are designing your ALM process for your bank, so these are some key specific areas or core areas of treasury.
जहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं you have to make proper policies with specific limits and all, and these policies or limits should be clearly articulated to the all the stakeholders of that particular thing. ठीक है, जैसे मतलब like if there is a stop loss, तो what is the loss bearing capacity of that particular one, क्या है वो डीलर को क्लियरली पता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करा होता है, ठीक है. Transfer policy pricing prescribe the methodology spread to be retained by treasury, segregation of administrative cost and hedging cost, allocation of cost to branches or other जो overall cost involved है, that should be also part of this one. Okay, so this is it. तो guys ये आपका इस तरीके से हमारा मॉड्यूल सीवी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है. सो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको सारी चीज़ें आपका क्लियर हुई होंगी, ठीक है. तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं आपका, ठीक है. सो एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज प्लीज डू मेंशन योर क्वेरीज, ठीक है. एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप गाइस, ठीक है. सो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है. So you can join this particular one for PDF, as well as if you have some doubts related to CIB examinations, so you can also ask your queries, and if you need PDFs or anything, ठीक है, anything related to your examinations, so feel free to ask, right? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है. I'll see you tomorrow, and now we will start with our module D, the final module, balance sheet management. Very easy one, ठीक है, बहुत आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है. तो मतलब नाम थोड़ा सा डरावना लगता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट, खासकर नॉन कॉमर्स वालों को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. बहुत आसान है, और अपनी थोड़ा स्पीड मेरे साथ लाने की कोशिश करें, ठीक है. जो भी कैंडिडेट अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, तो आपके लिए मैंने कंपाइलेशन आपका किया है, ठीक है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, ठीक है. मॉड्यूल ए का मैंने कंपाइलेशन दिया है, मॉड्यूल बी का आपको 28 को मिलेगा. तो अब अगर आप अभी रिसेंटली ज्वाइन करें हैं, तो आई विल सजेस्ट कि यू स्टार्ट विद मॉड्यूल डी. आपका डेली बेसिस पर रेगुलर अपना हैबिट बना दीजिए कि एक दिन एक क्लास आपका देखना. यूजुअली दीज क्लासेस आर फॉर 45 to 50 मिनट्स, ठीक है. आप 1.25 पे या 1.5 पे भी देख सकते हैं, ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ, राइट. तो ये भी आप कर सकते हैं, बट रेगुलर आपका रहिए, ठीक है. देन जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द मॉड्यूल डी आई विल स्टार्ट विद द MCQ इन केस स्टडीज और इस, ठीक है. तो वो सब चीज़ें आपका स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते जाइए, तो आपका इस तरीके से पूरी आपकी जर्नी आसान रहेगी, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम गाइस. So this is it from my side. I hope you enjoy the session. Do share your feedbacks and your suggestion into the comment section. If you like the session, please do like and do share with your friends. Okay. So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.